कोई भी चेयर ले सकते हो। ठीक है। हम लोग आपका पहले थियोरी शुरू करते हैं, ठीक है। मैं बाद में आपको 15 मिनट्स दूंगी प्रैक्टिस, ठीक है। So Parvez, can you introduce yourself? Receiving cricket from CSU from India. I passed out when on actually my 87%. Mhm. And I passed out to associate for junior person and at 88%. Okay. So what are your plans for future? What are your plans? It's meant securing a job in Java. That's it. Yes, Okay. Securing a job is your goal. that's in my, what I can say, primary, which short term goal. Short term goal. What is your long term goal? ऐसा कोई गोल नहीं है? Okay. Give me your what are your hobbies? Talking about I play a lot of games, also like cricket also, means offline games also and online on consoles on PC. Also I read vocabulary, watching the movies and Okay. Which is the latest movie that you have watched? listening to the Who is the director of Durandar? is Aditya Raj. Aditya Rai something. I don't know that. Yeah. And who is the singer in that Durandar movie? No idea. Just I watched the movie. Okay, fine. So, what is that what do you understand by uh, when I say that Java is a platform independent language? So, how you will explain that? Yes, Java is 100% platform independent because it has a JVM that compiles the code into bytecode. Afterward, bytecode is platform independent. And, that's why it can run anywhere in OS such as Windows, MacBook, or Linux. How it is able to run in other platforms? By using bytecode, bytecode is platform independent, but JVM is specific to the OS. That bytecode may be What is a bytecode? bytecode is nothing but the machine code. How do you get that? You write the code in that language. That is high level language. Afterward, we compile the Java is interpreted language that both use both compiler and interpreter. Compiler compiles one at a code and that generates the bytecode. And afterward, interpreter decode the low language and generate the output. When I say that you said bytecode is something which is generated because of the compiler. What is the work of a compiler? What it does? To convert the high level language to the low level language. Because high level language is understandable by human, but not machine code. Machine code is in bytes, like zero and one. Okay. So, how it works? What is the working way of compiler? Compiles all code at once, not randomly. Then, Then generate bytecode. That's all. bus khatam. Okay. Uh, Tell me what is the difference between a switch statement and if condition? If, if condition says there is a condition in if that give only if condition and if this is true then print some statement or a execute block. Afterward we write else keyword and afterward if the condition is what say wrong or false the else block gets executed. But in switch case there are multiple choice. We can take choice from the user. In which case there is the syntax of which is switch condition and in case there is case 1, case 2, case 3. That's how it works. There is So there multiple are options. multiple else conditions also. That is the mistake. Mistake case. No, that is not nested. There is if else conditions also. No, you said that switch case has multiple conditions. Yes, If condition also has multiple conditions, how it is different? in if-else case, user have don't choice. Means if there is condition is executing, it can be done. But in switch case, we can take user's
What do you understand by inheritance in Java? And how many, what are the different types? What is OOPS concept in Java? First tell me. Object-oriented OOPS concepts in Java, that is object-oriented programming language. Object-oriented programming language. It's in form of the forget. Breathe. ठीक है OOPS सांस लो फिर बोलो. yes OOPS concepts in Java there are main four pillars means What is the definition of OOPS? What is the full form of OOPS? in which the classes and objects are used Full form पूछ रही हूँ. full form oriented programming yes ठीक है ठीक है आगे बोलो. नहीं सर्विसेज. नहीं क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर्विसेज. वाह. नहीं ठीक क्या है. कहते हैं क्या था मुझे कैसे पता? मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, दे नहीं रही हूँ. नहीं just curious question हाँ, वो क्यूरियोसिटी हम बाद में पूरी करेंगे. अभी बताओ मुझे. What do you understand by inheritance? inheritance is the main pillar of OOPS concept that there are There is only one no pillar. there are total four pillars in what is So you inheritance will use the word one of the main pillars of OOPS. One of the pillars of OOPS. You will not say it is the main pillar. That means you are just focusing on inheritance there. okay Okay. it is one of the pillars of its concept there are total four pillars first is abstraction second is encapsulation the third is inheritance and abstraction these are Abstraction दो बार बोला. abstraction inheritance encapsulation the polymorphism and these are four types of four pillars of concepts in inheritance the classes get inherited by the parents. There are two types. There are subclasses and parent subclasses and superclasses. Superclasses also known as parent classes, and subclasses is known as child classes. In superclasses, the parent is in subclasses the class get inherited by the parent. The class in subclasses, the class is getting inherited by the parent. उसका सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में मतलब पेरेंट नहीं, उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट सब क्लास को इनहेरिट करता है. ठीक से बताओ क्या बोलना चाहते हो. सब classes get inherited by parent class. ठीक है, फिर से वही सेंटेंस बोल रहे हैं. पेरेंट क्लास इज इनहेरिटेड बाय द सब क्लास और पेरेंट क्लास इज इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड क्लास. ऐसा बोलना. ठीक है. ओके. ठीक है. एक वर्ड आपने सुना होगा जेडीपी. व्हाट इज दैट? Java development. क्या करता है? Java development it is a consists of compiler means Java C that consists to JDK. It is a development kit so that is the program gets executed. It is important in OS JDK contains JVM. JDK contains JRE. JDK is Java Development Toolkit. It is not Java Development Kit. ठीक है. प्लस उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ो, वर्क करो उसके ऊपर. ठीक है. Go and try the example for Fibonacci series. Fibonacci series. पता है क्या होता है? मुझे नहीं पता. मैंने प्रैक्टिकल में दिया था, घर पे ट्राई करो करके. मुझे नहीं पता वो. आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है. फिबोनाची सीरीज ऐसा होता है 1 and 1 दैट इज 2 2 फिर आप आगे करते हो. हाँ दैट इज 2 फिर 2 and 1 3 3 and 2 5 इस तरीके से जाता रहना चाहिए जहाँ तक यूजर बोलता है वहाँ. Bring your laptop and show the program as well.
तो काफी आगे बढ़ गई। I created a main method where I'm printing the first what the program is about. After that, I'm just taking a list to because the program is to print time values from 1 to 50. I'm making a list from 1 to 50 where I'm calling prime dot each prime method which I have made here in a class prime. Then I have made the different status so that I can call it directly from outside. Here I'm checking if the number is less than or equal to 1, we cannot count it as a prime. So I'm returning false. Else, I'm checking if the number is divisible from 2 to the number. Like it will ये टू टू द नंबर तक नहीं जाता है, square दिस बिकम्स, हाँ square root से वहाँ तक. ये जबरदस्ती का लंबा हो जाता है प्रोग्राम। आप कुछ स्टेप्स जबरदस्ती करवा रहे हो इससे, so we don't go till the end, we normally go either divide by 2 or till that. That. So we can take the square root of the number. Yes. So up till that. Yes. I can modify. Then I'm returning false. Else, I'm returning true. If the return value is true, it is printing the number is prime. Else, it is printing number is not prime. अब वो चीज का ध्यान रखोगे आप, ठीक है? ओके, रजिस्ट्री प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning. My name is Rajeshri. I have done my graduation in electronics and telecommunications from College of Engineering, Pune. Graduation year is 2016. However, I have been offered योर ग्रेजुएशन ईयर इज 2016। अच्छा, that because of huge quantity. I mean, produce. but you will not go like this. Avoid using this. My graduation year is this. I have completed my graduation, blah blah blah, whatever. Because you are highlighting it then. For the other person, it is very difficult to understand. भैया 10 साल क्या किया तुमने? And then the justification when it will start, it will be very difficult for you to explain that thing. What you have done. इतना gaps कैसे explain करोगे? Right. ठीक है? So, after graduation, I have experience of about 2 years in IT industry, where my project was about web development and front-end development. So I have worked across skills like Java, Hibernate, Spring, and also JavaScript, React. So when I say that front-end development, right? What are the technologies that you have used there? I have worked with Figma design, primarily Figma design using React into the actual web portal, also mobile web application. Okay. What is React? React is a JavaScript library which helps you in building the web applications faster. It is a very advanced JavaScript you can say, where there are so many libraries and tools which makes the application development easier and faster. It is basically a component-based building, component-based application building library, where you create different components and use it use that components to make the website. So why not we are going with JavaScript or HTML, and then why we are choosing on React? Why is it so? Whenever JavaScript makes the code very cumbersome and difficult to maintain, and we have to structure it and we may lose the point in a code where we don't understand where the code is actually going. But the React is a component structure, so we know how the components are developed, and we can particularly work on a single component at a time and make it really faster and easier. So how is a simple web development so different from React? Is there any difference in that besides component? Um, As a, if say suppose I am a non-technical person, if you want to explain me that why to choose React and why not go with HTML, how you will explain? So, React is a JavaScript library which has very inbuilt tools to make the project development faster. Also, the HTML and CSS and JavaScript, they are hard to maintain because you can have to then add the script tag in each of the HTML files accordingly. But the React has the inbuilt build process, which converts it and does this in the background so that it gets the Okay, Rajashri, I am a person who is not aware about anything. I don't know any technical things. What is component?
what are how to manage things. I मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है. I have a small company. I want to create a web application से suppose, ठीक है. मेरे को एक बैंकिंग का ऐप बनाना है suppose. मेरा एक छोटा सा कंपनी मुझे उसके अंदर बनाना है. तो why would you suggest me कि भाई how you are going to explain to me कि मेरे users को उससे क्या benefit होगा, users को क्या benefit होगा, and मुझे क्या benefit होगा if I am using React instead of JavaScript. वो तो आपने जो बताया वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ठीक है डेवलपमेंट के लिए ये इजी होता है बिकॉज आप कंपोनेंट्स इजीली मैनेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. नाउ मैं एक न्यूबी हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है आप डेवलपर क्या कर रहे हो. बट आप मुझे वो चीज कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है कि अगर मैं रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ या फिर एंगुलर में बनवा रही हूँ या फिर जावास्क्रिप्ट में बनाती हूँ, तो हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि क्या मतलब मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, आप किसी भी बना के दो, मेरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए. बट मुझे क्या बेनिफिट होगा आप कैसे एक्सप्लेन करोगी अगर आपको अपना प्रोजेक्ट बेचना है मुझे तो. work upon that. ठीक है, ओके. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके एंड जेआरई. JDK is a Java development service, and we can say a software development service that provides tools and libraries to develop the Java applications. JDK, जेआरई. JRE is a Java runtime environment which is used to run the Java applications. It does not provide the compiler and debugger, but JDK provides JRE plus its other tools and libraries, that is compiler and debugger. Java runtime application is only used, JRE is only used to run the Java application and not for development. So basically you mean to say that JDK is used for development but JRE is not used for development, it's just an environment. JRE is a part of JDK. Okay. Okay, ठीक है. So can you tell me what are the different types of data types in Java? Data types in Java, there are data types in Java are divided into two categories, that is primitive and non-primitive. The data type is actually the type of the variable and the kind of value it holds. So primitive data types, there are under primitive data types, there are eight data types which come from short, pipe, int, long, float, double, character, and boolean. These are all fixed in size, and yeah, these are all fixed in size. And these are the most basic data types in Java that are predefined and we can use it. However, non-primitive data types are also called as reference types because these are the data types declared, sorry, these are the data types declared by the programmer instead of string. The non-primitive data types can be classes, arrays, uh, objects, and interface. So if I talk about string, what kind of data type it is? It is a non-primitive data type. Right. Because the size of the string is not fixed for every string. Size can be different for one string and another string. How is integer different from a string? So integer is the basic data type in Java and it is predefined. That is, it has a fixed size of 4 bytes, and string depends upon the value we give it. The size of the string Is there anything else? string of which the integer value is directly stored into the memory. And it is because it is primitive, but for non-primitive, the value is not directly stored in the memory. Reference address is used for that. So integer also it is used. Whatever we create as an object that is known as a reference way. I just need data very simple. String is a class. It is not a. So when you say that string is also non-primitive, but you have to justify that it is a class. That is the reason whenever we are creating a string का कुछ भी आप बनाते हो, okay, even in string args when you write that name, right? You are writing S capital. The reason is because it is a class. That is the thing. Okay. Yeah. Well, when I talk about S as capital, so I come across this naming convention. What do you understand by naming convention? Naming conventions are not the rules, but the naming protocols followed by good programmer. There, in the naming convention, should make the class name always starting with a capital letter, method name always starting with a small letter, but the next consecutive word starting with a capital first letter. And the class name of the variable name should always start with a letter, underscore, or dollar sign, followed by the
characters or letters. It should not have white spaces or blanks in between. We cannot use keywords as a main identifier. Okay, so if I tell you that, tell me what is, can you define encapsulation and what it is, how it is used, what does it do? Encapsulation is one of the core principles of Cook's concept. It is basically wrapping the data that is the members or fields of the class and the code that is methods of the class into, into a single class. When encapsulation is achieved by making the data members private and making the private and making and providing the filter and setter methods to read the value and to fed the value. Also, encapsulation is basically typically used mostly for data hiding so that the class is hidden from outside, we cannot access it directly. We have to always create an object and use data setter methods for accessing the field. Have you come across ever is a relationship? What is that? If the relationship is basically inheritance, like when we derive the class from another class, we build a relationship that it is derived from this class. The class which is derived is called as a subclass, and the class from which it is derived is called as a parent class. So child is a child is inherited from a parent class. This is a relationship between child and parent. What is that sentence that we say if we want to say that it is a relationship with them? When the child class, whenever a class extends from another class, whenever a class extends from another class, it is कुछ भी बोलते जा रही हूँ मैं। आंसर प्रिपेयर करो अच्छे से, सब कुछ ठीक है, पर आंसर अगर सही नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक, ओके, वर्क ऑन दीज थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पूछा तो ठीक है, फिर डिटेल में जा रहे हैं तो गच हो जा रहा है सब कुछ। तो जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ क्लास में वो पकड़ो और उनके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करो, है ना? राइट, आ जाओ मुझे। हो गया, आ जाओ दिखा दो और जा सकते। लैपटॉप तो लिया था, प्रवेश दिखा दो आपका लैपटॉप। और क्या कर रहे हो समझा दो मुझे एक बार। यहाँ पे हमने पहले इसका स्कैन का इम्पोर्ट जाओ इम्पोर्ट कर ली। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक ए लिया और बी लिया और सी लिया। सी क्यों लिया? इन दोनों का एडिशन हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एडिशन चाहिए, तो फिर सी इसलिए नम नम मतलब कहाँ कहाँ तक हमें लूप को चलाना, मतलब हम यूजर के पास से लेके आपको कहाँ तक स्पेस चाहिए, तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे पहले सिस्टम का टॉप एलिमेंट क्या होगा? 0 1 तो हमारा कंपलसरी है, कौन सी भी सीरीज रहेगी, तो फिर इसलिए हम क्या करें यहाँ पे 0 और 1 किया। ये स्पेसिस मैंने बाद में ऐड किए, बोर्ड में इसकी तरह था इसलिए इसको स्पेसिस दी। फिर बाद में फॉर लूप चलाया, इंट आई इज इक्वल टू 2 से क्यों स्टार्ट किया, मतलब हमारा यहाँ पे ये है। तो इंट आई इज इक्वल टू आई इज लेस देन नम। नम क्या है? हमारा लिमिट है और आई की इंक्रीमेंट हो रही है। आई हर एक बार हर ग्रुप में जाएगा तो एक एक प्लस होते जाएगा। तो ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या किया हमने? दोनों का एडिशन किया और प्रिंट कहाँ किया? प्लस सी। इसके आगे प्लस सी प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैंने एल एन निकाल दिया क्योंकि सी की नहीं एडिशन की। और यहाँ पे और एक स्पेसिफाई करके यहाँ पे असाइन कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा? ये ए है, ये बी है, तो अगली बार ये जो बी है ये ए होना चाहिए, इसलिए ए इज इक्वल टू बी। और ये जो सी हमारा एडिशन आया वो बी होना चाहिए, इसलिए बी इज इक्वल टू सी। असाइन करके और एक बार वो चला गया। ठीक है, कमेंट्स का है। यस, रन नहीं सिर्फ करो एक बार। स्टार्टिंग पे बात। हाँ ठीक है। क्या 5 डालो, ठीक है। विश्वजीत एंड पूजा, गुड मॉर्निंग।
Am I Good audible? morning, ma'am. Yes, so I just want you guys to do some practical. By that time, I'll finish with interview with Mujib. ठीक है? तो विश्वजीत यू कैन ट्राई। आप दोनों को बट स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। एक बार शेयर करो, दोनों जन एक साथ कर पा रहे हो क्या? ओके मैम, ट्राई करते हैं। मेरा स्क्रीन तो शेयर्ड है। पूजा आपका शेयर करिए। पूजा आपका स्क्रीन शेयर करिए। Is it visible, ma'am? यस। विश्वजीत आपका स्टॉप हो गया क्या शेयरिंग? यस मैम। मल्टीपल शेयरिंग अलाउड नहीं है क्या इसमें? एक बार वापस ट्राई करो विश्वजीत शेयर करना। ओके मैम। पूजा आपका स्टॉप हुआ है क्या? Yes, ma'am. Stop हो गया। आई थिंक इसमें मल्टीपल शेयर्ड अलाउड नहीं है। यस मैम। गुड मॉर्निंग सुगम। ठीक है, सो आई डोंट हैव, देखते हैं क्या हो सकता है। कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए इसमें। मुझे एक बार शेयर करो अपना स्क्रीन। लेट्स सी क्या होता है। मेरा स्टॉप हो गया मैम। आपका स्टॉप हुआ है? यस मैम।
नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। विल सी लेटर ऑन। ओके, आई विल बी गिविंग यू ऑल थ्री सम क्वेश्चंस, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में डालती हूँ आप सबका क्वेश्चंस, आप लोग कंटिन्यू कीजिए वो करना। ओके मैम। तीनों को मैंने दिया है, एक बार चेक कर लो, इसमें से कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, चैट बॉक्स चेक करिए। Yes ma'am. Yes, With the ma'am. number for the user and check it. Yes ma'am. Sure ma'am. Okay ma'am. ठीक है, 15 मिनट्स आप में से मैं तुरंत किसी को पूछूंगी। मैं एक मॉक ले रही हूँ, वो फिनिश करने के बाद मैं आपके पास आती हूँ, तब तक ट्राई कीजिए, आपका प्रोग्राम हो जाना चाहिए, ठीक है। ओनली 15 मिनट्स। Okay ma'am. मुझे कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस का। Good morning, ma'am. My name is Sheikh Mutahir. I am from Nagpur district, and I have completed my BTech from college of engineering, Kolhapur. And I am currently pursuing complex connection engineering. ओके, If will I got 60 percentile, I am in level, I am at 80%. उसे बताने की जरूरत नहीं होती, दैट्स ओके। और एनीथिंग एल्स? हैव यू एवर वर्कड ऑन, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट यू हैव कंप्लीटेड, Ma'am, I have completed the complex science engineering. व्हाट ईयर? In finally, अभी चल रहा है, yes, so you not completed, you are pursuing, pursuing ठीक है। अपने इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा काम करें, एंड ओके, ठीक है। व्हाट आर योर हॉबीज? watching video on हु इज योर फेवरेट प्लेयर? What is his age? And what is his score? Anything that you like about him? I like about it is batting, because he is very calm under pressure. So what you're learning from him? To stay calm under pressure situation. Okay. Good. ठीक है, मुझे so you are learning Java, right? Why have you taken Java and not any other language? Because you are coming from a computer background. And why Java? Why not something else? Java is high level language. Because why Java is Java is basically used in all just like application. You said it is a high level language. कोई भी language जो development की होती है वो high level language होती है, तो आपने Java क्यों choose किया? One prefer okay, okay.
परसों तो कंप्यूटर साइंस भी करना था, फिर क्या हुआ? क्यों? ओके, इसका आंसर प्रिपेयर करो। दूसरा चीज, टेल मी, व्हाई डू वी say that Java is a high level language? Because easily, because it is easily understandable by human being and machine. Machine can understand high level language. No, machine can understand high level language. Human being can easily understand because You just said that it is understandable by the machine, that is why it is a high level language. आपने अभी बोला। it is only a high level language because it is understandable by human being easily. Okay. ठीक है। What is a high level language? High level language which is easily understandable by machine code and human beings. Decide कर। Human beings. It is easily understood by human beings. मशीन कोड क्या होता है? तुम बोल रहे हो इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय मशीन कोड। कौन मशीन कोड? आंसर कर रहे हो तब बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज क्या होता है जब आप आंसर देते हो तब पता चलता है कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है। जब तक आपका बेसिक नॉलेज का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, आपको कोई बोलेगा भी नहीं कि प्रैक्टिकल करके दिखा, आपका प्रैक्टिकल कितना भी अच्छा होगा। ठीक है, बट अगर आप बता रहे हो वही ऐसे, क्योंकि ऐसा सामने वाला भी बोलेगा कि गप्पे मार रहा, उसको कुछ भी नहीं आता, ये बस कुछ भी 4-5 वर्ड जोड़ दिए इसने और आंसर दे दिया, जबकि वैसा नहीं है। तो आपको वो आंसर फ्रेम करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान सोच के बोलो, ऐसे क्वेश्चन पूछो और एकदम से हाँ ये तो ऐसा है, वो कैजुअली नहीं बोलना है आपको। ठीक है, बहुत सीरियसली एंड कॉन्फिडेंटली सही आंसर देने की कोशिश करनी है। नहीं आता है तो एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आई विल प्रिपेयर। सिंपल, गप्पे नहीं मारने बीच में। ठीक है, टेल मी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा? So they have two different types in Java. One is regular type. There are two data types in Java. नहीं, there are two types of data types. There are two types in data type in Java. First one is primitive data type, and second one is non-primitive. Okay. आगे खत्म हुआ आंसर, अभी कंटिन्यू होगा। आगे आपको बताना है कि प्रिमिटिव कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव कौन सा है। Primitive data type are stored in the float, double, boolean, character, or टोटल कितने हैं? in ठीक है, बोलो। float, double, character, boolean, short, long, और नॉन प्रिमिटिव कौन सा होता है? non-primitive string, array, इतना। बस इतना ही होता है। Fine. So tell me, what is inheritance in Java? Inheritance in Java is a special method that used to utilize the variable बोलते जाओ। um, ऐसे कैसे चलेगा मुझे? अभी तक एक भी आंसर प्रॉपर फ्रेम्ड नहीं है अपना, एक भी आंसर नहीं है। मतलब आप कोशिश कर रहे हो बट तो बीच में कहीं ना कहीं रह जा रहा है। हिंदी में बोलो क्या है? इंग्लिश में आ रहा है। Bishwajit, Pooja and Shubham, can you please switch on your cameras? Yes, ma'am. Okay. Pooja and Shubham. मैम, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा?
आपने परमिशन नहीं दी है उसको। मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करो, परमिशन दो उसको। ओके। शुभम, स्क्रीन नहीं शेयर करना मेरे भाई, कैमरा ऑन करना है। हिंदी में बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, टेल मी what are the different types of inheritance in Java? Hmm? Inheritance in Java, static variable, instance variable कहाँ से आ गया? पाइथन में चला गया है क्या? कब पढ़ा था? तो वो वेरिएबल इधर कहाँ से घुस गया बीच में? आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। मैम वो क्लिक ही नहीं हो रहा है कैमरा पे। मुझे वो आपको परमिशन देना पड़ेगा आपके ब्राउजर से, अगर आप नहीं दोगे तो वो नहीं लेगा। यस मैम, वो मैं दे रही हूँ, पर वो हो नहीं, चार कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा है। विश्वजीत, तुम मंत्र पढ़ रहा है क्या? म्यूट पे हो तुम। उसका लॉजिक याद नहीं आ रहा है, वही याद कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि मंत्र मंत्र पढ़ रहा है। मैं 60 मिनट के याद कर रहा था उसका लॉजिक। सोचो मतलब तुम लॉजिक इंटरव्यू दे याद रहे है हो, लेकिन तुम ऐसे, तुम इंटरव्यू दे रहे होगे और तुम ऐसा बोलोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? क्या कर रहे हो तुम बैठ के वहां पे? ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। क्या करेंगे मुझे बताओ। मैं 0 दूंगी इस इंटरव्यू के लिए। प्रैक्टिकल दिखाओ आपका क्या किया आपने। मैंने पहले क्लास बनाया बैंक डेवलपमेंट पे। इसके अंदर दो वेरिएबल लिए, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स लिए अपना अकाउंट पेपर का नाम देने के लिए, और डबल और अपना बैलेंस चेक करने के लिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, चाहिए वो बनाया कंस्ट्रक्टर बनाया। तो यहाँ पे दो, फिर से यहाँ पे जो वेरिएबल लिए थे, जो पैरामीटर पास किए, स्ट्रिंग नेम और डबल। एक बहुत बड़ी गलती मुझे सामने दिख रही है। तुम्हारा जो अलाइनमेंट की बीमारी है ना, उसके वजह से क्या है बताओ। ये नहीं, नहीं, वाली कंपनी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अलाइनमेंट ही नहीं मेंटेन करते हैं। तुमने क्लास के अंदर क्लास बनाया, बैंक अकाउंट का जो क्लास है वो खत्म किधर हो रहा था? देखो ध्यान से। ये खत्म। खत्म कहाँ हो रहा है? ये वाला क्लास हाँ। यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है। हाँ तो किधर हो रहा है क्या? तो वो तो क्लास खत्म हो रहा है या आपका मेथड खत्म हो रहा है? इधर तो मेथड खत्म हो रहा है, इधर क्लास फिर खत्म हो रहा है। कैसी बात कर रहे हो? वो कंस्ट्रक्टर खत्म हो रहा है तुम्हारा। कोई तो आज कितने बनाने जैसे चीजें हैं, कुछ काम है। जैसा होता है ना, मुझे तो वाइब जाने लगती है। क्लास किधर खत्म हो रहा है तुम्हारा मुझे? मैम क्लास खत्म ही नहीं हो रहा है, इधर नीचे खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है नीचे? तुमने एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर घुसाया है ऐसे? तुम्हारा जो क्लास बैंक अकाउंट है किधर खत्म हो रहा है देखो एक बार। परवेश, तुम जाओ, आज ये इधर रहने वाला है। इधर खत्म हो रहा है एंड में, आज ये इधर ही रहेगा इधर खत्म हो रहा रात के 12 बजे तक।
हाँ वेरी गुड, और डिस्प्ले हवा में। मुझे मैं पूरा प्रोग्राम उड़ाऊंगी अभी। हाँ, मेरे को बहुत खुजली हो रही है हाथ में। Yes, now अभी बहुत ही तुम्हें क्यों नहीं पता था वो चीज? मैम, मेरे को क्यों बतानी पड़ रही है? मैं देखा नहीं था मैं अभी और इनहेरिट किधर हो रहा है ये बैंक वाला तुम्हारा? मैंने बोला था कस्टमर में इनहेरिट होना चाहिए, कहाँ है? भूल गया था मैं। भाई तुम ऐसा करेगा ना इंटरव्यू में, मैं अभी से लिख के दे दूँ, नहीं होगा। प्रैक्टिस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये चीज। तुम्हारा मेल तुम्हारे क्लास के अंदर घुस गया, क्लास में। ठीक है, वो चलो ठीक है, गलती हो गई तुमसे, तुमने अलाइनमेंट नहीं करना। फिर उसके बाद अभी मैंने तुम्हें बोला था ये इनहेरिट होना चाहिए, और मुझे काउंट चाहिए कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। कुछ भी नहीं किया तुमने वैसा। हम्म, कैसे चलेगा बताओ? तो अभी क्या किया था? अभी फिर किया तो कुछ लग नहीं रहा है कहीं पे भी। 5 मिनट और दे रहे हो, इसको ठीक करो। शुभम शेयर योर स्क्रीन। क्या करूं? इनहेरिट करो कस्टमर में, उसको मैं वेरिएबल्स ऐड करूँ और कंस्ट्रक्टर यूज करो। ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर भी यूज होना चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट। बोलना मत कि कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता है, 2 दिन पहले ही सिखाया था मैंने। गो अनम्यूट शुभम। हाँ कस्टमर की डिटेल क्लियर करना होगा हाँ, ये शुभम, माय वॉइस इज ऑडिबल? So, ओके, show me the program what you have done. Can you explain? yes, ma'am. We are taking a for loop from 50 to 100. So, we are iterating from 50 to 100, right? We are getting a variable count. So, if the number is less than 1, so it is not prime. Uh, so, we will say it is not prime. Okay. And here in the nested loop from we are iterating from 1 to I. I means uh, from means from 50 to 100 it will be iterating. And we are in this loop we are checking I बट नीचे तो कुछ if प्रिंट I नहीं हो is रहा है आपके आउटपुट में। नहीं नहीं मैम मैंने वो मतलब थोड़ा ये प्रिंट स्टेटमेंट का करके देख रहा था मैं आउटपुट इसलिए वो गलत आ रहा था अभी आ रहा था सर रन करो। एक मिनट कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये आपका? J1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन आई। आई क्या है आपका? मैम ओके, तो आप वो आई तक पूरा जाओगे? यस ये काउंट प्लस प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे? काउंट मतलब जैसे कि अगर दो ही मतलब डिविजिबल है तो हम बोलते हैं ना कि प्राइम प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं दो ही डिविजिबल है एक इटसेल्फ और एक वन से डिविजिबल ओके, बट ये जो आपने लॉजिक लगाया ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब अगर आप इसको जाओगे तो ये प्रोग्राम फिजिबल नहीं बोलते हम लोग। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ रोज के
डीएस से पढ़ो, उसमें मेरा कंसर्न ये रहता है कि आप वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखो कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितने एफर्ट्स लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज इसमें ना गड़बड़ जाती है, क्योंकि आप वन से लेके एंड तक पूरा स्कैन करते हो, उसे वैसा नहीं होता है। प्राइम नंबर ऐसे नहीं ढूंढा जाता है। इट हैज टू गो ओनली टिल रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ। से सपोज अगर हम 50 की बात करते हैं, 50 का स्क्वायर रूट क्या है, या अगर 50 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या होता है, 25। कभी भी अगर 50 को आप ठीक है। करने जाओगे 1 से लेके 25 के बीच में, वो एक बार तो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गया अगर, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है आपका। एंड इवन उससे भी ज्यादा होता है कि उसका स्क्वायर रूट क्या है, अगर वो स्क्वायर रूट से हो रहा है, मतलब फिर वहां पे वहां तक ही घूमेगा आपका लूप, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आगे। ओके, एंड नंबर तक नहीं जाते अच्छा। आप कभी भी। इसका प्रोग्राम आप एक बार ठीक से देखोगे, ठीक है शुभम। ओके, ओके मैम। सो ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ शुभम। कैन आई स्टॉप द शेयर स्क्रीन में? यस, यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयर। नो, लेट इट ऑन, उसको ऑन ही रहने दो, दैट्स ओके। लेट इट बी ऑन। मेरे को एक और चीज उसमें बतानी थी आपको, एक बार स्क्रीन शेयर करो वापस। आपका जो प्रोग्राम है इसमें कहीं पर कोई कमेंट्स नहीं है शुभम। गड़बड़ मतलब ढाई घंटे में क्या था? नहीं, वो चलेगा ही नहीं ना। आपको 15 मिनट से ज्यादा दिए नहीं जाते प्रैक्टिकल करने के लिए इंटरव्यू में, ठीक है। सो अगर आपने कमेंट्स नहीं डाले हैं तो प्रॉब्लम है, बात समझ रहे हो आप मेरी। तो ध्यान ओके रखो इस मैम। चीज का। ओके, ठीक है, कंटिन्यू, बोलो। प्लीज इंट्रोड्यूस Yeah. योरसेल्फ, let your screen be shared and continue talking. Okay. My name is Shubham Sirwade. I'm from Jalgaon. I have completed my Bachelor's of Science from Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Also have job experience as a uh, assistant admin in a MNC company, which is known as a Metro Healthcare. What have you completed? Your graduation you have completed in? Bachelor of Science, BSc. Can you bring your mic closer to your mouth, because आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली नहीं समझ में आ रही मुझे। Speak now. हेलो, अभी आ रही है मैम? Better, very better. अभी what have you completed? Bachelor of Science. Bachelor of Science. And then why this switch? Why from Bachelor of Science you have started learning Java? Uh, it was not. It was a non. Of course, it was a non-technical uh, course. My subject was PCM, which is physics, chemistry, and math. But I was curious about the development, coding, and things like that. When I was scrolling the YouTube, social media, I was getting the reels or shorts about the coding concepts like that. So I got connected to that topic. So I thought that I would also learn that topic. And why have you not So it worked will. as a, why have you not worked as something in your own field? Why this? I didn't know about my field. Means not not much career opportunities. So I was not aware about that. So that's why I switched to. So I You thought were not aware I can. about programming also, Shubham. आप तो कभी Yes, प्रोग्रामिंग के ma'am. लिए But भी aware नहीं थे। yes, ma'am. But I was curious about that, how things are happen, or how we can implement the things, so how we can learn. So before that, before uh, before coming to that, when I was uh, as I am a non-technical background student, right? So before that, I I wanted to know if a non-technical student can get a technical job. So before, I I got it first. So that's why I started learning. So
देखो आपको इसके लिए थोड़ा सा हेलो शुभम आर यू देयर? Yes, ma'am. तो बोल Yes. के आपने ओपन एंडेड सेंटेंस छोड़ दिया है। सेंटेंस खत्म करना So है, I बीच में से लटकता so हुआ I सेंटेंस have छोड़ नहीं सकते। okay, ma'am. So I have started learning today. ओके, आप प्रिपेयर करोगे हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दिस करियर स्विच, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कुछ और था, ठीक है, और आप अभी Okay, ma'am. प्रोग्रामिंग में गए हो, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या क्यों किया आपने ऐसा, ठीक है, Okay, इसके लिए ma'am. थोड़ा सा काम करोगे। ओके शुभम, सो प्लीज टेल Yes, मी ma'am. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेवीएम एंड जेडीके इन जावा? JVM stands for Java Virtual Machine. It converts the code, machine code into and byte code and give and with the help of that we get the output. And JDK stands for Java Development Kit, which is useful for Java development uh, environment. ओके, say suppose I have a program with me, ठीक है, I have built it on my system which is having Java code, but I want to execute it on Bishwajit's system. उसका जो operating system है वो अलग है, मेरा operating system अलग है, I have a Windows operating system and he has an Apple, ठीक है, तो आप कर पाओगे जावा का कोड, नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे, जस्टिफाई करेंगे? Yes, ma'am. We can execute once the program is written in Java. Once we return a Java program on any operating system, so that can be executed on other operating systems also with the help of JVM. Uh, like Windows have its own JVM, like Mac OS have its own JVM. Uh, so we don't need to write programs the, many times. So it will be runs only one time. Means it will be write only one time, and we can execute it on any other operating system that provides JVM of its own. Okay. Any idea about inheritance in Java? Yes, ma'am. Inheritance in Java. Uh, Inheritance in Java is a topic that we can say. Uh, uh, we use inheritance in Java mainly for reusability of code. So we don't need to write the code many times. So like we take an example of parent and child. So we when we write a class parent on and we we write a class parent, then we can inherit the methods and behaviors from parent to child class with the use of extend keywords. So we can use extend keywords in the inheritance. विश्वजीत आपका हो गया है क्या? Yes, ma'am. Okay, next question is for you, Vishwajit. Okay, ma'am. So Vishwajit, can you please tell me what is static keyword in Java? Yes, ma'am. Static keyword is a keyword that is used during creation of object, and it doesn't need any object to run. I mean, it doesn't need any object creation to compile the program. It does not need any object to compile the program. No. Static keyword. Think over it. Okay, Shubham, ma'am. how is a static variable different from a normal variable? Static variable is different from a instance variable because
static variable don't need an instance of class. Uh, so it can it can be invoked by calling class name, not method or variable, whatever you want to call it. And other is instance variable. So instance variable needs instance of the class. So it can be called only when we create an object. So instance variable need object for that uh, particular variable for instance variable. Okay. Ma'am, sorry. So Shubham, okay. Vishwajit, how many different types of inheritance do you know? Ma'am, there are four types of inheritance, but Java only supports three types, and that is single inheritance, multi-level inheritance, and hierarchy inheritance. And multiple inheritance Java does not support due to that diamond problem, or I mean there's some issue that that's why Java does not support multiple inheritance. मल्टीपल के अलावा एक और है जो Yes, जावा सपोर्ट नहीं करता है, कौन सा है? जावा सपोर्ट मतलब क्लासेस के थ्रू नहीं करता बट इंटरफेस के थ्रू करता है, interfaces के और through, है, yes, ma'am. कौन सा है? And like three support Java supports three inheritance, right? Like single, multi-level, and hierarchy. हायरार्किकल, ओके। Hierarchical. कौन सा वाला नहीं करता है आप जो बता रहे हो उसमें से क्या? Hierarchical support नहीं करता. हाँ, हाइब्रिड। Hybrid, sorry ma'am, hybrid. मैं बताने आऊंगी इंटरव्यू में, No ma'am. ठीक है। So single level inheritance is when one child class, there is only one parent class and one child class, and multi-level inheritance is there is more like a inheritance chain. When like there is a three class A, B, and C. A is the grandparent, I mean parent class, and B is the child class of A, and C is the child class of B. And hierarchical inheritance, we can say it most like the same example. If we have three classes A, B, and C, we can say like A to B and B A to C also, like from A parent class to B child class and A parent class to C child class. That we can say like hierarchical inheritance. पूजा आपका हो गया प्रैक्टिकल? Yes, ma'am. Okay. So Pooja, tell me what is JRE in Java? JRE is a Java runtime entity. It will run the program in any platforms. Is it Java runtime entity or something else? Environment. Vishwajit. Sorry, Sorry, environment. ma'am. Yeah. Sorry. I will do. So Pooja, tell me what is bytecode? Bytecode is I have no idea, ma'am. Okay. Fine. Shubham, tell me what are the different types of data types in Java? You are on mute. Guys, I need everyone to be unmute. There are two types of data types in Java, which is first is primitive data type and second is non-primitive data type. In primitive data type, we in primitive data type there is uh, uh, integer value or decimal value. Like in integer, in primitive data type, there are eight data types, which are int, long, short, byte, double,
Boolean and char, and in non-primitive data type there are array, string, class, object, and interface. Bishwajit, how would you say that integer is different from string? What are the difference between both data types? Ma'am, integer stores the value like numeric number, but string stores the value of text. Is it Like different. compulsory only text? Yeah. No, ma'am. In string we can. No, ma'am. In string we can add both numeric and text value, but in integer we can add only numeric values. Like previously in that car example we did in that car I typed that string value as XUV 500, so it store the value as text as well as that numeric, so it can store both. But in integer it can only store as numeric values. It doesn't allow to text, or it will give a compilation error. What else is the difference? String like integer primitive data type, and string is a non-primitive, you can say. And what is what has, so ma'am, I don't know that much anymore. I don't know any other differences, ma'am. Pooja, next question is for you. Yes. What are the key features of Java? Yes. Keyword is a reserve word. We cannot. Key features of Java. What are the important features of Java? Okay. Yeah. Java is a object-oriented programming language. It is a interpreter. It is a high-level language. It is a key feature of Java is a simple language, that is memory management. Pointer are managed internally. Garbage collection, less memory consumptions. Multiple inheritance is not support. Uh, it, Object oriented. It support the OOPS concept, which is development are easier. It is robust. It is management, garbage collection, exception handling, and multi-threading, and it is secure language. Okay. This is question for you, Shubham. What do you understand by heap memory? What is heap memory? Shubham, you are on mute. Okay, ma'am. When the object is created at the time of object creation, when we hit a new keyword, the new keyword preserve a spot in the heap memory. So it's give a memory to the आपका object. माइक थोड़ा सा आपके मुंह के पास लाओ शुभम, आवाज नहीं आ रहा ठीक से. It is not clear. हेलो, अभी आ रहा है मैम? Yes, it is clear. Please go ahead. At the time of object creation, when we hit a new keyword, the new keyword reserve a space in a heap memory. So at the time of object creation, object gets the memory for that for the execution. When we create a new object, then another new space reserved for the that particular object in the heap memory. Okay. ठीक है. What is garbage collection in Java, Vishwajit? It mostly stores the
the garbage value from the. Sorry, ma'am, I can't. I mean, like, I don't know that topic. I didn't study about that. Pooja, you used the word garbage collection, right? When you were explaining about Java. So what is garbage collection in Java? I have no idea, ma'am. आपने कितना प्रिपेयर किया था पूजा इंटरव्यू के लिए? किया था। फिर ऐसे कैसे चलेगा बताओ? बेसिक डेफिनेशंस हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए पूजा, यस है मैम। ना? पहले भी मैंने शायद आपको कुछ बहुत इजी सा पूछा था, बट आप एकदम ब्लैंक हो गए, आपने बोला मुझे नहीं आता। सो वो नहीं यस चलेगा। मैम। यू हैव टू वर्क ऑन बेसिक थिंग्स। अभी तो मैं आपको खुद से भी पढ़ने बोल रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम नेवर टॉक्ड अबाउट मेमोरीज, बट आई एम आस्किंग शुभम अबाउट हीप मेमोरी, ही इज एबल टू आंसर, राइट? तो मैंने तो नहीं यस पढ़ाया था वो चीज, वो कब आएगी आपके पास? सेल्फ स्टडी। सी आई कैन टीच यू एवरीथिंग इन 6 months और 4 months, Yes, वॉट ma'am. एवर इट इज, है ना? No, like I read about that, like it stores some garbage values, but in depth I didn't नो, know इट about डज it. Like नॉट I स्टोर्स can't. एनी गार्बेज वैल्यू। इट इज In नॉट my note, I मेंट wrote it down, ma'am. I wrote it down हाँ, like तो it's एक बार चेक करो गार्बेज okay, ma'am. कलेक्शन करता क्या है, व्हाट इट इज यूजिंग, व्हाट इज अ Okay. गार्बेज वैल्यू, अगेन टॉक अबाउट इट, तो वो एक अलग चीज आ जाएगी। Yes, सो ma'am. रीड अबाउट व्हाट इट इज, ठीक है? बिकॉज हम लोग ऐसे रैंडमली कुछ भी आंसर नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू बी करेक्ट, ओके? Yes, ma'am. ठीक No, है, I thought कि like वर्क ऑन दैट। ये विश्वजीत होल्ड ऑन, okay, वर्क ma'am. ऑन इट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है पूजा? इट यस इज मैम। इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर है तो आप खुद से कैसे पढ़ाई करोगे? क्योंकि अभी जो चीज मैंने ऑलरेडी करवा दी है वो भी अगर हम आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बाकी की चीजें कैसे पढ़ेंगे, है ना? और फिर इट इज नॉट अ यस स्मॉल सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू, इट इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट। इवन आफ्टर सो मेनी years still I get something new to study in it, ओके? वो छोटा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आपने देखा परसों हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे इनहेरिटेंस का, एंड वहां पे एक एरर आई, तो मैंने स्ट्रेट अवे उसके बारे में जाके रीड करना शुरू किया। एंड आई हैड राजश्री इन द क्लास एट दैट टाइम, ऑफलाइन थी वो। उसने विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड शी वेंट एंड रेड अबाउट इट, और उसने मुझे बताया मैम इसका मतलब ये हुआ है, वो चेंज हो गया, आप एक बार रीड करो देखो। एंड देन आई वेंट एंड रिसर्च अबाउट इट। सो वो आपको प्रिपेयर्ड रहना है, जैसे कुछ आता है आपका सब कुछ, यू हैव टू बी इन टू एक्सेप्टिंग स्टेट ऑल द टाइम राइट नाउ, From सब्जेक्ट that जिसके लिए हम Java from प्रिपेयर कर रहे हैं, okay, राइट? ma'am. Yes, तो ma'am. अभी तो मैंने आपको यस मैम। डीएसए भी पढ़ने बोला हुआ है खुद से। अब हम लोग बेसिक जावा नहीं खत्म कर पाएंगे तो हम डीएसए कब प्रिपेयर करना शुरू करेंगे? ठीक है, ओके। यस शुभम, आई थिंक आई एम डन फॉर यू। आपका एक बार प्रैक्टिकल जो था एक बार उस पर काम करो, ठीक है? इजी वे Okay, निकालो, ma'am. इतना मेहनत नहीं करते हैं, इट हैज टू बी स्मॉल एंड स्वीट। देखो प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है? ओके, Okay, ma'am. विश्वजीत शेयर योर स्क्रीन। व्हाट वाज योर प्रोग्राम विश्वजीत? मैम आर्मस्ट्रॉन्ग फाइंड करने के लिए कि द नंबर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, ये थोड़ा जो कमेंट मैंने दिया है वो बाद में से जल्दी जल्दी में दे दिया था थोड़ा, तो आपने जब शुभम को बोला कि कमेंट भी देना रहता है तब भी मैंने ऐड किया। हम्म, कोई दूसरा नंबर डालिए, रन कीजिए इसको एक बार। ये डी क्या है मुझे समझा सकते हो? यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे आप क्या चेक कर रहे हो? मैम ये जो एन का ओरिजिनल वैल्यू है वो उसको स्टोर करके रखता है, इसको हम देना है सिंबल ने। कर क्या रहे हैं हम लोग वहाँ पे? सॉरी मैम। क्या करना क्या चाहते हो आप वहाँ पे? मैम ये जो नंबर यूजर से एंट्री किया है ये उसका वैल्यू वो स्टोर करके रख रहा है ताकि जब इफ एल्स में हम यूज करेंगे तो वो सम के साथ मतलब वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे कि ये मतलब डी के वैल्यू के साथ और ओरिजिनल वैल्यू के साथ वो सम जो हमारा निकला वो सिमिलर हो रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। गिव मी योर इंट्रोडक्शन विश्वजीत।
Good morning, ma'am. Myself, Biswajit Sahu. I belong to Bhubaneswar, Odisha, and I have completed my Bachelor of Engineering in Information Science and Engineering from SAIB, the Institute of Technology, Bangalore. And as of experience, uh, I don't have any proper experience that. Sorry, can you repeat that? What did you say last? Ma'am, I have completed my engineering in Information Science and Engineering from SAIB, the Institute of Technology. And I mean, what should I say about experience, ma'am? I don't know that. What is the experience that you hold? Like, I can say I did some projects during my class, but during my college time. But I don't have any proper experience. Like I don't. So you can I talk don't about the projects that I have done this project, but Okay, ma'am. be aware that जैसे ही आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करोगे, ठीक है, Yes. तब आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट क्या था वो प्रोजेक्ट, उसमें आपने क्या Yes, ma'am. टेक्नोलॉजी यूज की थी, उसमें ये कैसे किया था, वो कैसे किया था, एरर्स क्या आई थी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार वो तो मैंने 8 साल पहले किया था, अब मुझे याद भी नहीं है कि क्या किया था। Yes, ma'am. ठीक है, बट मैम हम जो सीवी में प्रोजेक्ट्स ऐड रखेंगे लाइक रेज्यूमे में, तो उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे कि आपने लाइक कैसा ये किया है, ये प्रोजेक्ट किया है, ऑफ तो कोर्स। ये प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे, या लाइक कौन से रियल टाइम एरर आए थे, ऐसे सब। कि अगर मैं तो उस टाइम में जो प्रोजेक्ट मैंने ऐड किया होगा उसी प्रोजेक्ट के बारे में बोलूँ, लाइक कॉलेज के प्रोजेक्ट में, आपका राइट? स्टेटमेंट उस हिसाब से चेंज होना चाहिए विश्वजीत। Yes, ऑल्सो ma'am. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ फिजिक्स बैकग्राउंड और फिर बाद में आप उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी शुरू करते हो, बिकॉज द इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, Yes, इट्स ma'am. जस्ट एन एग्जांपल। तो वो Oh, आपको got ध्यान it. रखना है कि आप क्या बात कर रहे हो और हाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू इफेक्ट योर इंटरव्यू, बिकॉज वो भी ध्यान रखना पड़ा आपको। Okay, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है। एंड व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट यू आर अवेयर अबाउट बिसाइड्स जावा? Ma'am, besides Java, I know basics of HTML, CSS, and React. And I learned something about Python, but I don't know about it in depth. You don't know about? I don't know about the Python in depth, but I can't like during one semester only I read it. So that's Okay, it. so can you please help me understand how is Python different from Java? And when would you say that, okay, I will do this thing in Java, and then when you will choose that, okay, I have to work with Python? Sorry, ma'am, I didn't got the class part. How you will tell that when you will like if you have to decide, right? कि मुझे जावा में काम करना है या पाइथन में काम करना है, तो आप कैसे काम करोगे? हाउ यू विल गेट दैट आंसर कि भैया मेरे को जावा में काम करना है इस चीज के लिए या पाइथन में काम करना है इस चीज के लिए? हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन? Ma'am, like I said, I don't know that much about Python, but as तो फिर उस बारे during में बताओ ही मत okay, विश्वजीत, ma'am, इट हैज समझा, टू बी yes, ma'am, केप्ट समझा, आउट ऑफ द सिलेबस, राइट? आप जब yes, उसके ma'am, बारे में बात ही नहीं करना चाहते हो तो फिर उसके बारे में बोलो ही मत, बिकॉज yes, मुझे ma'am, आपके बारे में उतना ही पता है जितना आप बताओगे। yes, ma'am, ये क्वेश्चन आ सकते हैं like हाँ, right, ma'am, अब समझा, दूसरा okay, ma'am. क्वेश्चन, टेल मी हाउ इज HTML डिफरेंट एंड व्हाट इज React, like how they are two different things? Uh, HTML is more like that. We can say like it's a blueprint. Like we used to create the framework for any project. We can use HTML in that, and it we can't say like it is different from let's say React, because like HTML used in a free project, so we can differ from that. वर्क करो इस आंसर के ऊपर विश्वजीत, ओके ओके। मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन के ऊपर ही वर्क करता हूँ, लाइक कौन कौन से बोलने हैं और कौन कौन से मैं कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाऊंगा, यस, वो बिकॉज क्या अगर आप करना। अपने इंट्रोडक्शन में ही गुम हो गए तो फिर आगे का तो इंटरव्यू खत्म हो गया वहीं पे।
मैं मेजर पॉइंट में भूल गया था, थ्योरी प्रिपेयर करते टाइम मैं भूल गया था कि इंट्रोडक्शन भी देना रहता है, वो भूल ही गया था कोई एकदम बात से। कोई बात नहीं. Okay, you can stop sharing. Pooja, share your screen. Yes, ma'am. Shubham, if you want, you can leave. Any questions for me? Shubham, you are on mute. No, ma'am. So how, which thing can I be means sell आपके or लिए मैंने लिखा improve? था आपको थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के लिए काम करना है, ठीक है. और Okay, ma'am. आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने स्विच किया है. आपका पहले कोई और लैंग्वेज पे आप काम कर रहे थे एंड नाउ यू हैव स्विच टू अनदर लैंग्वेज, राइट? तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट कि वो क्यों किया आपने. उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म स्विच हो गया आपका. आप Yes, उसे ma'am. कैसे आंसर कर सकते हो? गो टू चैट जीपीटी, फाइंड आउट द आंसर. उसको बोलो इस पे काउंटर क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, पूछो उससे, वो आपको उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है. सो वो थोड़ा सा Okay, अपना ma'am. प्रॉपरली प्रिपेयर करो. एनीथिंग एल्स? ये जो आपने मुझे बोला मैं रील्स देखता था फिर मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा फिर वो, ओके, थोड़ा बहुत ठीक है, बट इतना ज्यादा हम ऐसे नहीं बता सकते कि भैया हम इतना ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो गए कि हम पूरा उसमें ही घुस गए अपना करियर को लेके. बिकॉज करियर इज समथिंग Right. वेरी सीरियस, राइट? एक रील्स पे से आप डिसाइड नहीं कर सकते अपना करियर. तो वो थोड़ा सा आंसर अपना जस्टिफाई करो वहां पे, Okay, ma'am. ठीक है. एनीथिंग एल्स? और और मैम communication. कम्युनिकेशन पे काम करेंगे थोड़ा सा. शुभम, बेटर है, बट थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को, ठीक है. ओके, Okay, ma'am. प्लीज. Thank you, ma'am. वेलकम. विश्वजीत, एनी क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Like, how was my interview? And if you would rate my interview from 1 to 10, like what are the इंटरव्यू things you में need to? आपको पहले तो अपने बेसिक डेफिनेशंस प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि स्टैटिक क्या है, स्ट्रिंग क्या है. अभी हम लोग बहुत ज्यादा हेवायर हो गए हैं यहाँ पे, मतलब Yes, ma'am. यू कांट जस्ट कम अप एंड से कि मेरे को आता नहीं है ना. Okay, ma'am. वो चीज गलत हो जाती है वहां पे कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया. तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर आंसर डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया मैं अभी नहीं आ रहा है, बट आई विल प्रिपेयर इट लेटर ऑन, आई विल वर्क ओवर इट. ऐसे आप एकदम से ऐसे नहीं आता है बोल के भाग नहीं सकते उसमें से. आपने नहीं, शायद पूजा ने वैसे बोला था कि नहीं आता है, सीधा ना बोल दिया एकदम से, ठीक है. वो चीज नहीं होनी चाहिए. अवॉइड डूइंग दैट, बिकॉज उससे क्या होता है आपका इंप्रेशन उधर ही जीरो हो गया एकदम से. Yes, ma'am. तो हमें ऐसा लगता है कि छोड़ो फिर आगे क्या ही पूछे, अब कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए, है ना. बेसिक बेसिक चीजें प्रिपेयर करो अच्छे से, बिकॉज जैसे मैंने आपसे पूछा स्टैटिक, तो आपने पता नहीं कुछ अलग ही शुरू कर दिया था वहां No, पे, ma'am. तो वो Static जैसे मैंने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि it doesn't need to create an object to compile that and it belongs to class, ऐसा ही थ्योरी लिखा हुआ था, तो शायद वो गलत हो कंपाइल सकता कहाँ से है. आ जाता है ना बीच में. ओके मैम, कंपाइल मतलब we can use it without creating an object. एग्जैक्टली, दैट इज द वर्ड. आप कुछ Yeah. भी वर्ड बीच में घुसना नहीं सकते हो, Okay, ma'am. है ना. Yes, वहां पे ma'am. ध्यान रखना है. दूसरा, अगर मैंने आपसे पूछा गार्बेज कलेक्शन, तो गार्बेज वैल्यू लेता है, ये करता है, वो करता है. आप कुछ भी शुरू हो गए, आपको नहीं आता है, ना बोलो, खत्म करो कहानी को और फिर बोलो आई प्रिपेयर अबाउट इट, ठीक है. I will बट do. हर बार यही बोलोगे हर क्वेश्चन के लिए, तो भी इंप्रेशन खराब होता है. इसीलिए Yes, ma'am. सोचो, है ना. थोड़ा सा Yes, ma'am. काम करो वहाँ पे और बेसिक बेसिक क्लियर करो अपना. बेसिक तो जितने भी डेफिनेशन है उन्हें खा जाना है, उसके लिए तो कोई वो ही नहीं रखना है. उसके अलावा भी और Excel. डेटा मिलेगा आपको, Yes, ma'am. ठीक है. जैसे कि हम जैसे बात करते हैं क्लास में, तो हम मैंने आपको बहुत बार बहुत सारे वर्ड्स बोले हैं, जैसे JRE, JDK, JVM क्या होता है पढ़ो, ठीक Yes, है. ma'am. I know. फिर हम तो वो आपको वो सब प्रिपेयर करते रहना साथ साथ में. जो आता है वो लिख के रखो. वो मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ क्लास में कुछ भी. हर Yes, एक का रीजन होता है, ठीक है. अब वो आप पे है कि आप कितना कैच कर रहे हो वहां से. सो प्लीज कीप प्रिपेयरिंग. एक भी दिन छुट्टी मत करो उस चीज के लिए. आई अंडरस्टैंड आपका बीच में एग्जाम था, तो कोई बात नहीं. अब okay, फोकस ma'am. करो और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है. Yes, बिकॉज ma'am. उसका रिजल्ट कब आएगा हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते हैं. तब तक बाकी की कहानी पार हो जाएगी फिर बीच में से, Yes, ma'am. राइट. ठीक है, Yes. ओके. And ma'am, like my confidence and communication, like my English. बीच में बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है.
which is very irritating when you are listening to someone very carefully. ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसमें पता है क्या, फिर वो Oh, तो वो आप सोचो कितना लैग है बीच में, इंटरेस्ट oh, खत्म हो जाएगा सामने वाले का सुनने के लिए। तो आप okay, जब ma'am. बात करते हो ट्राई करो वो कम करना। जितना आप कर रहे हो उतना आपकी इंप्रेशन डाउन जा रही है, मतलब वो लैग जितना आ रहा है ना बीच में, उससे या तो फिर पहले ही 2 सेकंड रुक के फिर स्टार्ट करो, एकदम से कूदना नहीं है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज स्टैटिक, take a pause, think over it, frame your answer in your brain and then start speaking. करके शुरू मत करो, Yes, ma'am. ठीक है? I will open that part. Anything else, Vishnu No, ji? ma'am. That's it. Thank you, ma'am. Welcome. Please पूजा, explain आपने क्या किया? Yes. First, I have enter two numbers. First number is 0 and second number is 1, and we have print the number, and I will use the while loop. So first we have print the first number and enter second number, and update and print the first number and second number, uh, and first number and add to the first number and second number of the Fibonacci series. Can you run this again? Yeah. Execute it. Scroll down. Okay, so if it is saying that 10, so you are only going till greater than 10, not 10 numbers tak. Okay. If it is Yes. saying 10, it has to go till 10 numbers. Yes. Okay. Okay, Pooja, can you introduce yourself? Yes. Good morning, ma'am. Myself Pooja Bhure. I am from Pune. I have completed my graduation in 2018. I am electronics and electronics and telecommunication from Mayegaon, Baramati. I have 6 month job in software testing. Software testing. You have 6 months what? 6 month. 6 month in software testing. What? बीच में word missing ऐसा नहीं लग रहा? Yeah. 6 month in Yes. software testing क्या है? तुम देखने जाती थी, तुम काम करने जाती थी, तुम बस घूम के आ जाती थी कंपनी में, क्या करते थे टेस्टिंग, या घर पे बैठे बैठे टेस्ट कर रही थी? सो इट इज 6 months 6 experience month. in. Yeah, 6 month experience in manual testing as well as automation testing. So okay, so manual testing and automation testing, you might have studied Java before also, right? Yes. Then why this now? Why have you not continued that job? Because of family issues. Okay, justify. You pass out in 2018, right? It is Yes. 2026. That means 8 years. What have Yes. you done in these 8 years? First I have married and then childs and so what. So this job was before your wedding or it was after the job, after the wedding? Before your wedding. Before not my wedding, your wedding. Before my Yeah. wedding Yes. बोलो, before your wedding. मेरी शादी से पहले तुम काम कर रही थी, हाँ? No. Okay. So what have you done in these 8 years besides family and kids and everything? Anything else and that you have been and doing? and I have business. It is a crafting business. So So if crafting as in what? What crafting business? Can you explain? Flowers. तो वो एक्सप्लेन करना है पूजा आपको, आप ही बता पाओगे और कोई नहीं बता Yeah. सकता आप क्या करते हो, है ना? वो आपको प्रिपेयर Yes. करना है आंसर, वो आपसे ऐसे पूछेंगे ऑब्वियसली. ओके, क्राफ्टिंग बिजनेस, गुड. देन व्हाई डेवलपर जॉब नाउ?
I have interest in testing. Testing. There will be some gap in the job in the job, There was a and gap in the job. yes, also gap in the job. I have started the Java full stack development, and there is how many uh, how many years of experience, how many gaps in my job in testings. ओके, इस चीज को हिंदी में बोलो, क्या बोलना चाह रही थी? अ, मैंने जॉब करके बहुत दिन हो गए। इसको भरने के लिए मैंने जावा फुल स्टैक का क्लास लगाया है, और इस चीज में मुझे डेवलपमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो इसलिए मैं करना चाहती थी। और Okay, so you have to say it like this, that there was a gap in my experience, and yes, I started learning Java to yes, just understand about programming, and then I started building interest in development, and so I wanted to apply as a developer now. ठीक है, yes, सेंटेंस को थोड़ा सा फ्रेम करना सीखो, कम्युनिकेशन पे yes, काम करो, बिकॉज आप जब yes, ma'am. कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तब वो ना बात ठीक से क्रॉस नहीं हो रही है, मतलब आप जो बोल रहे हो और जो एक्चुअली हो रहा है। आपने मेरी शादी करवा दी आपके गैप में, ठीक है, मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है तो आपकी शादी के लिए मैंने गैप लिया था, तो वो अभी वो कैसा हो गया? मेरी शादी के लिए आप क्यों गैप ले रहे हो? ठीक है, तो वो थोड़ा सा yes, वर्क करो अपने कम्युनिकेशन पे, इट इज इम्पोर्टेंट है ना, वरना आप जो बोलना चाह रहे हो इट yes. इज नॉट गोइंग थ्रू प्रॉपरली। ओके, अ, दूसरा चीज बहुत आपको दिन काम, हो गए, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, इसकी वजह से so थोड़ा whenever you गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, जब आप क्लास में बात करो मुझसे, मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, ओके, yes, बिकॉज yeah, दैट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस फॉर यू। अदरवाइज yes, ये गैप पे बढ़ता जाएगा, और फिर आप कॉन्फिडेंस, आपको बेसिक डेफिनेशन जो वो एटलीस्ट प्रॉपरली बोलने आने चाहिए, है ना, वहां पे yes, गड़बड़ yes, नहीं ma'am. होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन एटलीस्ट इट शुड कम थ्रू, yes, राइट? अगर हम दूसरा चीज देखें तो आपका एक चीज, जब मैंने आपको लॉग इन किया, आपने आपने कैमरा ऑफ रखा था बहुत देर तक, है ना, तो मैंने आपको yes, 2-3 बार बोला भी अपना कैमरा ऑन करो, बट देन देयर वाज अ ग्लिच। हमेशा ये चीज ध्यान रखो, इफ यू आर इन इंटरव्यू यू नीड अ कैमरा, अगर वो ऑन नहीं है दे yes, माइट डिस्क्वालीफाई यू, बिकॉज आपने पूरा प्रैक्टिकल कैमरा ऑफ करके किया था, yeah, है ना, तो वो yes, नहीं सही होता है, इट इज नॉट गोइंग राइट। उससे ये होगा कि आप शायद कहीं पर देख के पूरा प्रैक्टिकल करके आए हो, तो वो चीज yeah, सही नहीं है। yes, ओके, दूसरा yes, चीज, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ यू सेड इन योर ओन डेफिनेशन दैट जावा इज अ गुड, इट हैज अ गुड गार्बेज कलेक्शन, व्हेन आई एम आस्किंग यू अबाउट गार्बेज कलेक्शन यू आर ब्लाइंड। मैं आपसे स्टैटिक के बारे में पूछती हूँ, यू आर ब्लाइंड। तो बेसिक डेफिनेशंस हमारे सही होने चाहिए पूजा। yes, ma'am. ओके, अगर वो नहीं ठीक होंगे Yes, तो फिर हमें उस पर पहले काम करना है, एंड रोज दिन में एटलीस्ट 2 to 3 hours इस चीज के लिए डेडिकेटेडली दीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट वर्किंग, है ना? yes, ठीक है, anything that you want to ask, no, ma'am. anything that you want to understand from me, Yes, बोलो। I डेफिनेशन वगैरह पे मैं काम कर आज से ही काम करती हूँ, ओके, या और मेरा कॉन्फिडेंस भी मैं अपग्रेड करती हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा। whenever you are preparing make sure that you are यस, standing in front of the mirror and speaking, यस, ठीक या, है, तो आपको उससे ये पता चलेगा कि आप कितनी बार रुक रही हो, आप कैसे ग्लिच कर रहे हो बीच में, है ना, कैसे आप एकदम से यस, ऐसे यस, अटक जा रहे हो, तो वो आपको देखने से ज्यादा समझ में आएगा अपने आप को ही कि आप क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और एल्स सेकेंड थिंग इज, यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग एनी डेफिनेशन एंड लिसन टू इट लेटर ऑन, कि आपने क्या गड़बड़ किया है वहां पे, आपको खुद यस, समझ मैम, में आएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को सुनते हैं तब हमें ज्यादा समझ में आता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। या, यस, And there is a 6 month only experience which is, ऐसा समझो, it is a no experience then,
ठीक है, Yes. आपको Yeah. बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज इट्स 8 years गैप. Yes. Okay, so you have to work hard now. Okay, I am not demotivating you जब, बट आपको काम करना पड़ेगा. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Yes, I will Anything else? definitely work on my confidence and ग्रेट. एंड जब आपसे पूछा जाता है कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द क्राफ्टिंग वर्क दैट यू आर डूइंग, यू वेंट ब्लैंक. yes, अब वो जो yes, क्राफ्टिंग वर्क है वो आपका है. यू आर द ओनर ऑफ दैट जॉब, ऑफ दैट बिजनेस, राइट. आपको yes, एकदम से आना चाहिए उसके बारे में. आप ब्लैंक नहीं हो सकते वहां पे, है yeah, ना. सो ट्राई करो ये सारे आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज द इंटरव्यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन. आपको नहीं yes, पता है ना. ओके. And then when you had a crafting business, then why coming back for programming? तो वो भी आपको justify करना पड़ेगा. yes, ma'am. Yeah, Yeah. Okay. yes. Any questions? No, ma'am. Okay. Do you want anything from me? Any help? Any guidance? Anything? Uh, yes, ma'am. बोलो क्या चाहिए. मतलब बेसिक्स कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं या वगैरह कुछ पहली बात जब एनीथिंग आइडिया. हम जब सेशन लेते हैं तब हम उसकी रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना. जब भी यस, आपका सेशन खत्म हो रहा है उस रिकॉर्डिंग को एक और बार देखो, क्योंकि एक बार देखने से तो मूवी में भी हम काफी चीजें मिस कर जाते हैं. यस, तो ये तो हमारी पढ़ाई है, ऑफ कोर्स इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाओगे. मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली एक ही गो में बताती हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत साल हो गए करते हुए. आप पहली बार सुनते हो तो ऐसा होता है कि हम मिस कर जाते हैं बीच में से कोई चीज़ें. ओके. सो रोज जब भी यस, आप मैम. प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सेशन हुआ, आपको 1 घंटा तो सिर्फ उस सेशन को सुनने के लिए देना है. इसके बाद उसमें से कुछ चीजें ऐसी निकलेगी जो आपको शायद नहीं पता है, और शायद आपको पता है तो उसमें और भी इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि अंदर 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 है. जैसे कि स्टैटिक. तो अभी मैं ये पूछ सकती थी कि स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या हम कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बना सकते हैं. तो आपको पता यस, है क्या उसका आंसर क्या होना चाहिए. कंस्ट्रक्टर को हम स्टैटिक बना सकते हैं. देखो कंस्ट्रक्टर का जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर क्या क्या नहीं होना चाहिए, राइट. यस, शुभम अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो क्या तुम उसे आंसर कर सकते हो. मैम. कंस्ट्रक्टर जब हमने पढ़ा था वहां पे, इट शुड नॉट बी एन Yes, एब्स्ट्रैक्ट, इट yes, शुड नॉट बी डैश 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 समथिंग समथिंग समथिंग. देखो तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना. बट हमको पता ही नहीं है, वहां तो था हमने पढ़ा था, बट अभी हम ब्लैंक हो गए. क्यों? क्योंकि हमने रिलेट नहीं किया वो चीज को, राइट. जैसे अभी हम लोग ओवरलोडिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अगर मैं आपको बुलाऊंगी, जब ओवरलोडिंग पढ़ाऊंगी एक्चुअली, और फिर मैं आपको बताऊंगी देखो ये ओवरलोडिंग है, और फिर आपको वापस उस चीज को बैक पीछे जाके एक बार रिलेट करना है कि हाँ हमने सेम चीज इनहेरिटेंस में भी देखा था, सेम चीज हमने कंस्ट्रक्टर में भी देखा था. ये वही चीज है ना. तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. मुझे इज दैट क्लियर. यस, मैम. रोज आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, रोज आप अच्छे से उसके ऊपर काम करेंगे. एवरी डे यू हैव टू कंट्रीब्यूट, ओनली देन इट इज गोइंग टू वर्क. वरना पहले 3-4 इंटरव्यूज तो वैसे भी ऐसे ही जाएंगे अपने, यस, उसमें मैम. डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इंटरव्यू आई विल इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस एंड वेरी बेसिक गुड पूजा. इंफॉर्मेशन. गुड गुड गुड, वर्क ऑन इट. ठीक है. ओके. Yes, I will definitely work. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो. No, ma'am. ठीक. लेट्स रैप अप देन. कुछ पूछना है आपको या शुभम आपको कुछ पूछना है. yes, ma'am. बोलो. Ma'am, I did 3 jobs. So is it necessary to add these 3 jobs in my introduction? So What are the 3 or jobs? my first job was in call center. My second job was as a exam invigilator, and third was assistant admin in pharmacy company. So call center is not going to contribute anything in your programming. ठीक है. Okay. दूसरा, आप कितने महीने का था या कितने साल का था वो. It was like 6 months. What about the examination, that one?
एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर, एग्जामिनेशन इन्विजिलेशन मैम, इन्विजिलेशन। ये 2 दिन का ही होता है ना बच्चे? नहीं मैम, वो तो मतलब जैसे एग्जाम होती थी ना वैसे मैं जॉब करता था। तो वो जैसे कि काउंट नहीं गवर्नमेंट। होती है कहीं पे भी। इट इज नॉट अच्छा काउंटेड। और अच्छा कौन सा अच्छा। था? और लास्ट वाला ये था असिस्टेंट एडमिन करके। कौन? कितने टाइम के लिए था वो? ये था अबाउट 6 मंथ्स। ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि फॉर आई वाज स्टडिंग बट आई वाज डूइंग दिस एज वेल फॉर एक्स्ट्रा इनकम, बस। क्योंकि वो चीज आपकी इसमें कहीं पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है इस रोल पे, ना ही वो आपके, बिकॉज यू सेड यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। क्या था आपका बैकग्राउंड? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, राइट? नहीं नहीं, बीएससी प्लेन। सॉरी, बीएससी था। तो बीएससी में भी ये दोनों चीजें कहीं पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ना ही आपने वो राइट नॉलेज यहाँ पे कहीं पे यूज किया है। इट इज जस्ट राइट। बिकॉज आपको कुछ करना था तो आपने किया, बिकॉज यू वर स्टडिंग एंड यू वांटेड टू अर्न एज वेल। तो आपने सिर्फ उसके लिए काम किया था, ठीक है? तो आप वैसे उसे बता सकते हो, ये मत बताओ इट इज माई एक्सपीरियंस। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपने में पास हम। आउट कब का है आपका? और मेरा 23। ठीक है, तब आप ये बोल सकते हैं बिकॉज आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ एंड प्रिपेयरिंग। तो मैंने ये चीजें की है जस्ट फॉर अर्निंग सम अमाउंट। ओके। ठीक और मैम, इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं? जैसे कि समझो मैंने अभी मेरा नाम ले लिया, नाम कवर हो गया, और आप कॉलेज क्या कवर हो गया। आपने क्या पढ़ा है? आपका नाम क्या है? आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है? और फिर अगर प्रोजेक्ट पे गए तो वो उस पे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि आपने क्या काम किया है। प्लस आउटसाइड लैंग्वेजेस आपको पता है, और जैसे कि फ्रंट एंड में मैं ये जानता हूँ, बैक एंड में मैं ये जानता हूँ, डेटाबेस जानता हूँ, ठीक है? तो वो सब आपको बताने हैं उनको। और आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसमें आपने इसमें से क्या यूज किया है, ठीक है? वो भी एक चीज आती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। और बाकी की चीजें लाइक हॉबी, इंटरेस्ट, आई लव यू म्यूजिक, वो पूछने पे बताना है, ऐसे कूद कूद के बताना नहीं, मैम। ठीक है? क्योंकि फिर उस पे जब क्वेश्चन आएंगे तो वो बहुत ज्यादा जाएंगे, तो फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। ठीक है? Okay. ओके मैम। हेलो और मैम। कुछ? हाँ जी, बोलो। मेरा मैम इतना ज़्यादा गैप हुआ है तो मैं इंट्रोडक्शन में उसको कैसे कवर कर सकती हूँ ऐसा? अब बताओ, बिकॉज ऑफ मैरिज एंड फैमिली आई कुड नॉट डू दिस, तो आई हैड टू टेक अ गैप, दैट्स इट। फीमेल्स के लिए इजी होता है जस्टिफाई करना, मेल्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फीमेल्स के लिए वो बोलते हैं। तो विच ईयर यू गॉट मैरिड, पूजा? 2018। 2018 you got married, and 2018 Yes. was your pass out year. Yes. So after marriage you have not worked. After marriage, 6 months I have worked on software What testing. was your pass out year? 2018 है। 2018 में पास आउट हुआ, 2018 में शादी हो गया, एंड देन आपने 6 Yes. महीने काम किया। Yes. लीविंग द जॉब का रीजन क्या था? बेबी? Yes. ओके। तो फिर वो बताओ कि बेबी की वजह से मैंने ब्रेक लिया था। Okay. I got this opportunity, I could have joined back. My family was okay with me, but I had responsibilities, so I could not do it. But now I think I am settled now, so I can continue with my work. Okay. टेस्टिंग के जॉब में मेरा इतना ज़्यादा गैप हुआ है इसलिए मैंने ये जावा फुल स्टैक का क्लास लगाया है उसको भरने के लिए मतलब हाँ, समझ में आया मेरे को, कोई बात नहीं। बट टेस्टिंग ऐसा होता है कि आपसे कोर जावा करने के बाद आपका टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आप वहाँ पे भी प्रिपेयर करना शुरू करते हो, आपको एडवांस की तरफ जाना नहीं पड़ता है। टेस्टिंग ऐसा था, राइट? जावा में किया होगा ना टेस्टिंग? यस मैम, जावा में किया है। तो फिर वो वैसे रहता है, कोर जावा एंड देन टेस्टिंग होता है। अभी आप एडवांस कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो उसमें ऐसा होता है कोर जावा एंड देन डेवलपमेंट। तो वो दोनों एक ही रास्ता है। तो पर आपने, आपको ऐसा, आप वापस टेस्टिंग में क्यों ज्वाइन नहीं हुए, वो उसका आंसर भी आपको याद रखना पड़ेगा।
यस मैम। ठीक है, अब वापस टेस्टिंग में ही क्यों नहीं चले गए तुरंत, और आपने क्यों वेट किया कि आप डेवलपमेंट सीखो और फिर जाओ? ठीक है, यस इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है कि आप टेस्टिंग में जाओ, तो आप जाओगे क्या? ठीक है, तो उसके लिए भी आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आपको ऑन जॉब हम आपको बोलते हैं कि नहीं आप जावा छोड़ दो, अब आप पाइथन पढ़ लो, तो आप पढ़ोगी क्या? इसके लिए भी आंसर आपका रेडी होना चाहिए। यस ठीक है, सो आंसर्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। ओके पूजा? यस मैम। Okay, guys, so I'm wrapping up this session. I'll update you tomorrow about what is the feedbacks जो थे वो मैंने आपको दे दिए, बट इसके अलावा जो feedbacks होंगे आप लोग कल मुझसे questions पूछ सकते हो। ठीक है, tomorrow we'll continue with the batch. चलो, थैंक यू मैम। Thank you, Welcome, ma'am. Shubham. Take care, Thank you, bye bye. ma'am. Yes, Pooja, bye bye. आपका बाकी है ना अभी? हो गया, उसका हेल्प लेके करने से क्या फायदा? मैं अंडा देने वाली हूँ तुमको अभी। हेल्प नहीं लिया, बस मैं ये गया था उसके पास, क्योंकि मैं इंटर नेम और इंटर बैलेंस कर रहा था ना, जैसे जो ये डॉक्टर यूज किया अभी नहीं बताया कि यहाँ पे डॉक्टर टाइप नहीं पड़ा इसका। बताया कि तो ये जो वेस्टी डॉक्यूमेंट्स है ये वाला तो यूज करने से ये वाला अलग इंटर बैलेंस अलग इतनी देर तो को ये बता रहा था। मेरा तो तभी हुआ था, मुझे लगा कि और मैं क्या करूँगा एक्सटेंड करने के लिए चाहे कि असली उसको किया। ये इधर अंडरस्कोर क्यों है इंटर के आगे? तो जब मैं ये कर रहा था लाखों ना, तो उस टाइम पे भी इंटरव्यू अंडरस्कोर करके क्वेश्चन करने वाला था, इंटरव्यू अंडरस्कोर क्लास में। और मुझे भी, मैं ये भी मैं वैलिड नहीं गिनूंगी, क्योंकि जब 15 मिनट के बाद मैंने जो देखा था वो सिनेरियो ये सिनेरियो बहुत अलग है। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ नहीं आया था, मुझे बस लगा कि बैंक अपना वे दो बताया था, बट वो इंटरव्यूअर नहीं बताएगा, क्योंकि देखो जब कस्टमर आता है ना कंपनी के पास, वो 4 बार नहीं बताता है मेरे को क्या चाहिए। तुम एक इमेजिन करो, तुम एक मॉल में हो, मॉल में छोड़ो, एक तुम डीमार्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक कस्टमर आया, या ये सोचो मैं डीमार्ट में काम करती हूँ, तुम मेरे पास है, तो तुमको कुछ एक चीज चाहिए, तुम कितनी बार मेरे को बताएगा वो चीज कैसे चाहिए? और मैंने तुझे 3 बार पूछा तो तुम क्या करने वाले हो? रिपीट होगी। अभी वही कस्टमर तुमसे जब बोलता है मुझे ऐसा कुछ चाहिए, और आपको 4 बार वो बात बतानी पड़ रही है, तो क्या होगा? कंपनी ऐसे इंसान को क्यों हायर करेगा जो चीज समझ ही नहीं पा रहा है कि करना क्या है? क- किसी के पास कंपनी में टाइम नहीं है आपको 5 बार बताने के लिए कि ये ऐसे करना है ना? क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार मिलेगा, एक ही बार सुनना यानी कंटिन्यू करना। मैंने फिर भी आपसे पूछा एक और बार बताऊं क्या? आपने बोला हाँ, मैंने आपको दूसरी बार वापस बताया कि क्वेश्चन क्या है। तब आपको लिख लेना चाहिए था, आप वेट नहीं कर सकते कि मैम तीसरी बार भी बताएगी तब मैं सोचूंगा और फिर करूंगा। 15 मिनट के बाद आपका वैलिडिटी खत्म हो गया, है ना? चलो इस बार कुछ बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं चलाऊंगी ये चीज, अभी मैं मार्क्स भी नहीं दे रही हूँ इसके लिए, बट ठीक है। काउंट कहाँ हो रहा है आपका? काउंट किधर हो रहा है? मैंने बोला था ऐसे नहीं होगा काउंट। कितने काउंट हो रहे वो तो पेड में दिख रहा है। इसकी खुद की सेविंग अकाउंट में खुद के कोई वेरिएबल्स ही नहीं है। नहीं तो इसके इधर से ऊपर से पैन क्लास मैंने क्या बोला, ऊपर से जो आ रहा है उसके अलावा कस्टमर क्लास होना चाहिए जिससे कि वो डेटा आ रहा है। कस्टमर है ही नहीं आपके पास क्लास। बैंक एक क्लास था, दूसरा क्लास ही मेरा कस्टमर था, और इसके अंदर खुद के भी कोई वेरिएबल्स होने चाहिए, वो आपने बनाया ही नहीं। ऊपर वाली प्रॉपर्टी सेम इसमें आएगा। हाँ, सिर्फ क्या अकाउंट होल्डर एंड बैलेंस उससे से हो जाएगा। ना अकाउंट नंबर की जरूरत है अपने को, ना एड्रेस चाहिए, ना फोन नंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है ना। हम बैंक में जाते हैं तो अपना सिर्फ एक अकाउंट नंबर होता है, बैलेंस होता है, बस खत्म। क्या बता रहे हो? ऐसे ही होता है ना? फिर लॉजिक का है मुझे,
इसलिए मैंने तुमको ये क्वेश्चन दिया था, मेरे को देखना था तुम क्या कर रहे हो, वरना सबका क्वेश्चन ऐसा तुम्हारे। अलग दिया था तुम ये करते फिबोनाची सीरीज आर्मस्ट्रांग Prime- में करते थे, प्राइम नंबर वाला तो क्लियर रहता ना मैम। वो मुझे देना ही नहीं था तुमको। मैम आप राजश्री को प्राइम नंबर दे रहे हो तो फिर तो? अलग कर दे। हायर जिसको ये बात समझ नहीं रहा। कल दिया था इसका प्रैक्टिकल क्लास में, लास्ट प्रैक्टिकल ये दिया था, देते देते मैं सोच रही थी दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं, मैं चल दे देते, इसने पक्का नहीं किया होगा, और वही हुआ, तुमने नहीं किया। परवेज ये क्या करता है फिर? चलो एंड करते हैं इसको, अभी ये रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।